Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important sources, that is the Hindu and Indian Express. तो इन दोनों न्यूज़पेपर से जो भी important news है आपके एग्जाम से रिलेटेड उसको डिस्कस करेंगे. So let's get started. And these are the list of the topic. Today is 19th of August. So the first topic is National Cancer Register Program Report 2020. This is the important report. Question can be directly asked in the prelims examination, or you can quote this statement in your mains examinations. Now, the second topic is Supreme Court ruling on the PM Care Fund. This is also the important one. The third topic is NSCN-IM framework agreement loopholes. That what are the loopholes and what are the problems that are arising from the agreement, right? So these are the third topic. Now the last topic is contemporary India and in Nepal relation. There have been many up and downs in the India's and Nepal bilateral relationship. So we'll look into the details of the aspects and what are the problems that has arisen, right? And apart from this, we'll have some MC question at the end of this video. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube, and do not forget to hit a like button on this video. Now the first news that is from the Hindu, that is report predicts the complete topic. The theme of this news is National Cancer Register Program Report 2020. So this is the topic where the entire news it is detailed about. So we'll see what exactly is the report. And this is precisely very important for your prelims examination and equally important for your general studies paper 3, right? So some topics are already mentioned in your general studies paper 3. So first, according to the National Cancer Register Program report, जो कि recently published की गई है, इनके मुताबिक जो टोटल कैंसर के पेशेंट्स हैं कंट्री में that are likely to increase and the number would be somewhere close to 15.6 lakh by 2025. So this is the report which has been compiled, and the official figure has been released by Indian Council for Medical Research and the National Center for Disease and Informatic Research, Bangalore, right? इन दोनों ने मिलके नेशनल कैंसर रजिस्टर प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 लाया है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ ध्यान रखें कि किसने इसको डिक्लेयर किया है. सो दीज टू ऑर्गेनाइजेशन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. Now it is estimated that there will be 12% increase from the current cases. अभी वर्तमान में प्रेजेंट में जो केसेस है उससे जो ज़्यादा इंक्रीज होगी that would be 12%. So sudden increase 12%, it's a no large number. It's not that decreasal number. So काफ़ी बड़ा नंबर है. अगर 12% के आसपास बढ़ती है तो एक जो सब्सटैंशियल फिगर आएगा 2025 तक, that would be 15.6 लाख लोग. रिपोर्ट में और क्या चीज़ें बताई गई है, तो रिपोर्ट के मुताबिक जो टोबैको रिलेटेड कैंसर्स हैं उनकी अगर एस्टिमेशन करें तो दैट कंट्रीब्यूट टू 27.1% ऑफ द टोटल कैंसर बर्डन. तो जो टोटल कैंसर है जो रिपोर्ट की जाते हैं इंडिया में, उसमें 27% सिर्फ टोबैको की वजह से रिपोर्ट होती है. सो दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आप इंटरव्यू या किसी और ऐसे में लिख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप यूज़ कर पाएंगे. द हाइएस्ट नंबर इन एनी फॉर्म ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन इन द कंट्री, और सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट वाली जो रीजन है वहाँ से एक टोबैको रिलेटेड की जो केसेस हैं वो बहुत हाई है. ना कैंसर ऑफ द लंग्स, जो लंग्स के कैंसर हैं, माउथ के कैंसर हैं, इवन स्टोमक के जो कैंसर है, ईसोफेगस, दिस इज ईसोफेगस ऑन योर नेक रीजन. सो जो ईसोफेगस का जो रीजन है तो वहाँ पे कैंसर्स बहुत ही कॉमन है मेंस में, राइट? तो जो मेन में है, मेल में बेसिकली ये तीन तरह के जो लंग्स, माउथ, स्टोमक और ईसोफेगस, ये केस जिसके जो कैंसर्स है वो काफ़ी कॉमन है. Now the cancer cases in the country has to be like 15.6 lakh by 2025, which I have already told you in the beginning. और by 2020 की अगर बात करें तो 13.9 lakhs तक हो जाएगी. Like this is by 2020. So increasement could be there. और among the women की अगर बात करें तो breast cancer is estimated to contribute 2.0 lakh, almost 14.8%. This is some of the common cancer in the women. उसके बाद जो सर्विक्स कैंसर है दैट इज़ ऑल्सो एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 0.7 लाख. ये 5.4% कॉन्ट्रीब्यूट करती है. जिस तरह से टोबैको रिलेटेड कैंसर सबसे ज़्यादा थे मेंस में, तो यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर है. ना बोथ मेन एंड वुमेन में अगर देखा जाए तो जो गैस्ट्रो इंस्टाइनल ट्रैक की जो डिजीजेज हैं या उसके जो कैंसर है दैट एस्टिमेट्स टू बी कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 2.7 लाख, मतलब 19.7%. दिस इज बोथ इन टर्म्स ऑफ मेन एंड वुमेन, राइट? तो टोटल कैंसर बर्डन इतना है.
So these datas would not be again important, but the ranges are very important to help you understand कि कौन कौन से किस तरह से हैं, मेन में कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करी है कैंसर्स को लेकर के, किस ऑर्गन में ज़्यादा डिफिसिट है, और विमेन में क्या क्या चीज़ें हैं. सो ये नंबर्स परसेंटेज अगर आपको याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि क्या क्रोनोलॉजी है, किस हिसाब से इंडिया में कैंसर चल रही है, राइट. Now this is the basically a map which is showing the number of the patients from the region across India, pan India. So talking about the northern India, where the population is 300 basically millions, and almost the number of patients is 590. तो अगर 25% population है तो 22% यहाँ से patients हैं, right. उसके बाद अगर बात करें इधर नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स की, तो यहाँ पे अगर 26% पॉपुलेशन तो 17% लोग इन्फेक्टेड है. कमिंग टू द साउथ, यहाँ पे 21% लोग हैं, पर जो इन्फेक्टेड हैं दे आर 28%. दिस इज ड्रास्टिकली इंक्रीजिंग. नाउ द सेम केस इज देयर विद द वेस्टर्न इंडिया. यहाँ पे 20% अगर हैं तो 26% लोग इन्फेक्टेड हैं. एंड द सेंट्रल इंडिया इज 8% एंड 7%. तो ऑलमोस्ट सारे रीजन पे आप देखोगे, दिस इज द इंफोग्राफिक विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हर रीजन पे नंबर ऑफ पेशेंट रीजन वाइज कितने हैं. और कैंसर हैज़ ऑल्सो बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डिजीजेज इन इंडिया. बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की इसको ज़रूरत है. गवर्नमेंट के पास काफ़ी प्रोग्राम्स उन्होंने बनाए हैं कैंसर को लेकर के, बट स्टिल द नंबर ऑफ द केसेज आर इंक्रीजिंग. द लाइफ स्टाइल डिजीजेज विच हैज़ अराइजन दैट हैज़ लेड टू दिस नंबर इंक्रीजमेंट, राइट. So for you it is equally important for the prelims examination as well as for the interview purposes. तो इस चीज़ को आप एक analytical view से समझने की कोशिश करें ताकि आपके पास clarity हो इस topic को लेकर के, right? Now coming to the second topic, that is Supreme Court ruling on the PM CARES Fund. Yesterday also we discussed about the PM CARE Fund जहाँ की petition file की गई थी जो नेवल के कॉमरेड हैं उनके द्वारा, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुप्रीम कोर्ट ने नोट की है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है वहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. अगर जनरल स्टडीज़ की बात करें तो जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया है कि जो PM केयर फंड्स है वो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है. दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वांट यू टू नो अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट. इसके बारे में आप थोड़ा विकीपीडिया करके और डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि सीधा इस पर भी डायरेक्ट एक सवाल प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, राइट. एंड विच इज़ द डोनर दैट कॉन्ट्रीब्यूट वॉलंटरली. तो इसमें इसको एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया जहाँ की डोनर जो है अपनी स्वेच्छा से बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग वॉलंटरली, राइट. ना बात करें कोर्ट ने और क्या क्या चीज़ों को नोट की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई ऐसा ओकेज़न नहीं है या कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है जहाँ पे जो हमारी कैग है, जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, वो ऑडिट करे इसकी, राइट. तो जो ऑडिट है पब्लिक चैरिटेबल जो ट्रस्ट की वो नहीं की जाती है. दैट इज़ डन बाय द इंडिपेंडेंट बजटरी सपोर्ट टू द गवर्नमेंट मनी. और कोर्ट ने एक चीज़ को और नोट किया कि दिस इज़ नॉट ओपन फॉर द PIL पिटिशन टू बी क्वेश्चंस कि किस तरह से कहाँ चीज़ें यूज़ हो रही है, फंड कहाँ जा रहा है एट द एंड ऑफ द नीड. तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों चीज़ों को खारिज किया है. दे हैव रिजेक्टेड इट कम्प्लीटली एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन a note that these two, the first thing that is the audit from the CAG and the PIL, the public interest litigation by any of the activists seeking any knowledge would not be given from the government side, right. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया. बात करें सुप्रीम कोर्ट ने और कुछ आर्ग्यूमेंट दी है नेशनल रजिस्टर जो हमारे रिस्पॉन्स फंड है NDRF को लेकर के. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट ने कहा कि जो PM केयर फंड है दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू सर्कमवेंट बेसिकली ये जो पिटिशन फाइल की गई थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे डिसमिस किया है और इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखा है कि जो हमारी जो PM केयर फंड है वो किसी भी तरह से जो नेशनल टेरिस जो बेसिकली NDRF में जो फंड कंट्रीब्यूट होती है उसको बाईपास करती है. तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो PM केयर फंड है और जो NDRF है वो कम्प्लीटली डिफरेंट एंटिटी है और दोनों का रोल अलग है. दिस इज़ अ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड दिस इज़ अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट. तो जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है दैट रिसीव कंट्रीब्यूशन टू द फाइनेंस टू फाइट अगेंस्ट द क्लैमिटी. कोई भी ऐसी राष्ट्रीय आपदा आती है उस चीज़ में इस फंड को यूज़ किया जाता है, राइट. और बेंच ने ये भी रिफ्यूज़ किया है कि जो डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं इस फंड के फ्रॉम द PM केयर फंड टू द NDRF दैट कैन नॉट बी डन. NDRF and the PM care fund would be a separate entity. This Supreme Court has clearly marked in its judgment,
राइट। तो एससी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पीएम केयर फंड है और जो एनडीआरएफ है दैट इज अ टू सेपरेट एंटिटीज। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कभी अगर इंटरव्यू अपेयर करेंगे बेसिकली तो उस चीज़ों में ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है कि दिस इज समथिंग विच यू काउंटर योर आर्ग्यूमेंट्स, राइट। कुछ एक आपको मैं ग्लिम्स जल्दी से इन्फोग्राफिक के थ्रू बता दूं कि क्या क्या बातें कही गई हैं। तो पीएम केयर फंड इज़ अ पब्लिक चैरिटेबल फंड दैट आर गिवन, वॉलेंट्री लोग इस पर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। देयर इज़ अ नो ओकेजन कि जो डायरेक्ट किया जा सके पीएम केयर फंड से एनडीआरएफ को मिक्स किया जाए, ये बात मैंने आपको बता दी। डोनर कैन ऑल्सो बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, जो चाहे तो पीएम केयर फंड के अलावे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड पे दे सकते हैं। ये वॉलेंटरली देने वाले की इच्छा, वो किस पे देना चाहता है, देयर इज नो ऑब्लिगेशन इन दैट, राइट। एंड देयर वुड बी नो कैग ऑडिट, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उनसे कोई भी ऑडिटिंग नहीं करवाई जाएगी, बिकॉज दिस इज अंडर द पब्लिक सोसाइटीज एक्ट। और बेसिकली चैरिटेबल सोसाइटीज हैं, तो जो भी चीज़ें चैरिटेबल सोसाइटीज के अंदर आती है उसकी कैग ऑडिट नहीं करती है, राइट। तो कैग की जो ऑफिस है उसके बारे में भी आप पढ़ लें, क्योंकि यूपीएससी कई बार बैकग्राउंडर सवाल भी पूछती है प्रीलिम्स में। And there is no need of fresh national disaster management plan to combat COVID-19। ये भी बात की गई थी कि क्या कोई एक फ्रेश प्लान बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे कोविड-19 के लिए एक रोड मैप डिसाइड किया जाए, तो इस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। एंड देयर इज नो रीजन टू ले डाउन द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द रिलीफ ऑफ कोविड-19। सो दिस इज अगेन द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट टेकन दिस इनटू कंसिडरेशन। और एक्सरसाइजिंग गाइडलाइन अंडर सेक्शन 12 ऑफ द मिनिमम स्टैंडर्ड टू होल्ड कोर्ट। So these are some of the important points that you have to note that what Supreme Court has quoted in its judgment. Now कुछ कंसर्न्स भी लेकर के बताए गए हैं इस चीज़ों को कि जो पब्लिक स्क्रूटनी है वो कैसे काम करती है। तो एनजीओ है, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसके एडवोकेट है प्रशांत भूषण। इनको अभी कंटेम्प्ट के केसेस को भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी फटकार लगाई है। एंड ही हैज़ आर्ग्यूड दैट द पीएम केयर फंड वाज नॉट सब्जेक्ट टू द कैग ऑडिट, जो मैंने आपको पहले बताया। और इट वाज नोटेड कि जो पब्लिक स्क्रूटनी है दैट कंट्रीब्यूट्स टू, एंड दिस इज 100% टैक्स फ्री। तो ये बातें कही गई थी, कंसर्न रेज की गई थी इस चीज़ को लेकर के कि क्यों ना किया जा सके। सो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसर्न दैट वाज रेज्ड। एंड द फंड कलेक्टेड बाय द पीएम केयर फंड आर इंटायरली डिफरेंट from the fund collected from the charitable trust. So ये बातें, this is something which was being taken into the consideration into the Supreme Court note, but Supreme Court ने ये सारी बातों को, ये जितनी बातें रखी गई है उस एनजीओ की तरफ से, उसको डिनाइड कर दिया, उसको खारिज कर दिया, right? Now the other topic is from the Indian Express, peace is precious। तो यहाँ पे बात की गई है NSCM-IM जो है बेसिकली हमारी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म, और उसकी जो फ्रेमवर्क है उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, उसके बारे में जिक्र है। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। बाकी एनालिटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 एंड पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी वाली जो पार्ट है वहाँ पे भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो कंट्रोवर्सी है वो 2015 की जो फ्रेमवर्क है बेसिकली नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म ने और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, उसमें जो एग्रीमेंट हुई है उसको लेकर के अभी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, बिकॉज यहाँ पे तालमेल बैठता नहीं दिख रहा है, ना तो केंद्र सरकार के साथ और ना ही हमारे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म के साथ। तो बेसिकली NSCM-IM है, उनका कहना है कि अगर बात करें टोटल नंबर की जो फ्रैक्शंस की जितने पॉपुलेशन वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो काफ़ी बड़ी नागा पॉपुलेशन यहाँ से रिप्रेजेंटेशन है। और इन्होंने कहा कि इनके जो ग्रीवांसेस हैं रिलेटेड टू फ्लैग, उनकी अपनी फ्लैग, उनकी अपनी सोवर्निटी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है और एक नए इंटरलॉक्यूटर्स की बात की गई है। जिस तरह से JNDK में जब प्रॉब्लम हो रही थी पीस प्रोसेस को लेकर के, तो केंद्र सरकार ने नियुक्त किया था इंटरलॉक्यूटर्स को। So the government has already appointed them, right? So what they are asking at this point of time, that we want a separate flag, we want the separate sovereignty and the constitution for Nagaland, and the interlocutors that would be looking into the each and every aspect from the Nagaland point of view, and at the same time they would be intimating the central government ki what is the exact situation in Nagaland, right? So these are some of the important points that has been highlighted, and among which the consensus between the center and the Nagaland has not been established। तो ये चीज़ें आप समझ लें बहुत अच्छे से, क्योंकि जब आप आंसर्स लिखोगे यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, द रैशनल बिहाइंड दिस एग्रीमेंट। ना बात करें लूप होल्स की, तो जो नागा पीस प्रोसेस अकॉर्ड है वहाँ पे जो पीस ऑब्जेक्टिव है दैट इज क्लियर, देयर इज नो मैंडेट, देयर इज नो क्लियर मैंडेट विदाउट दैट।
और जो नागा इश्यूज है दैट पर्टेन टू सर्टेन नागास बट ऑल्सो इम्पैक्ट द होल रीजन, क्योंकि जो नागा इनहेबिटेड एरियाज हैं वहाँ पे इनका जो बातें, जो म्यांमार के जो बॉर्डर्स की जो रीजन है, वो सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है. एंड द इश्यूज ऑफ integration of the contagious Naga inhabited area of मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश. तो ये सारी चीज़ों की जो टेरिटोरियल यूनिफिकेशन है, जिसको ग्रेटर नागालिज्म की बात की जा रही है, कि इन तीनों रीजन को मिला करके हमें एक अलग नागालैंड बनानी है, ग्रेटर नागालैंड बनानी है, राइट. सो ये चीज़ों को लेकर भी काफ़ी वायलेंट हुई है, यहाँ पे भी कंसेंसस नहीं बनती दिख रही है. एंड अनदर मेजर हिंड्रेंस इज द पीस प्रोसेस इन द नागालैंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑफ मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन ईच क्लेमिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नागा. तो ऐसा तो संभव नहीं है कि सरकार हर एक पार्टी को एक अलग रिप्रेजेंटेशन दे. जो प्रतिनिधित्व है वो किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं हो सकता है, right? So it should be for an organization that is representing a large chunk of population, right? So this is something which government want कि भाई आप 3-4 लोग मिलके इकट्ठे हो जाइए and accordingly we will see कि क्या बेस्ट किया जा सकता है. It is not like that कि some chunks of people coming asking for anything then other chunks of people are asking. तो एक चंक्स पे काम नहीं हो सकता. There need to be a uniformity और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही सरकार तालमेल बना सकती है, राइट. क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं इसमें? तो नागास की अगर बात करें, कल्चरली बहुत ही हेट्रोजेनस ग्रुप हैं, बहुत डिफरेंट ग्रुप के नागास पीपल दे आर रिसाइडिंग देयर. और नागालैंड इटसेल्फ इज अ बिग और जो बेसिकली अगर मैं मणिपुर की बात करूँ तो पूरा म्यांमार के साथ बॉर्डर टच है उनका, बहुत काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी है वहाँ से. और मेन स्ट्रीम जो पॉपुलेशन है वो दे आर ट्राइब बेसिकली. तो ट्राइबल पीपल के साथ कोऑर्डिनेट करना सरकार की पहली प्राथमिकता है. द प्रायोरिटीज आर अलाइंड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट द पॉइंट इज दैट things are not going well, right? They're not understanding to negotiate with the central government. They have their own reasons they have cited. तो देखना होगा कि सरकार उस चीज़ को किस तरह से करती है और एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशंस जो हैं उसके तरफ हमें आगे बढ़नी है. हमें कल्चर को भी देखना है, वहाँ के जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको भी ध्यान में रखना है, जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है, क्योंकि म्यांमार के साथ बॉर्डर लग रही है हमारी, तो वहाँ पे जो टेरिटोरियल सिक्योरिटी है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, उसको भी मेंटेन करना है. तो ये सारी चीज़ें जो चैलेंजेस हैं दैट इज़ देयर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सारी चीज़ों के साथ एक बार बैठ के बात हो जाए नागालैंड और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, देन ओनली दे कैन कम टू द कंक्लूजन. दिस हैज़ ऑलरेडी बीन होल्ड फ्रॉम 2015, राइट. तो ये बातें आप ध्यान में रखें. नाउ द लास्ट टॉपिक इज कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस. सो बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे गए हैं नेपाल और इंडिया के रिलेशनशिप को लेकर के. और बात करें इंपॉर्टेंस की तो जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन की जो बातें की गई है और नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं कुछ लेक्स के नाम पे, काला पानी, लिम्पदुरवा और ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो आप ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़रूर देखें. नेपाल ने जिस तरह से अभी रिसेंटली अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया था, काला पानी, लिम्पादुरवा और लिपू लेक का जो रीजन है, जो कि उत्तराखंड, इंडिया के उत्तराखंड रीजन में आती है, अब उसको नेपाल के टेरिटरी में रख दिया गया है विद द न्यू मैप विच वाज पास्ड बाय द नेपाल पार्लियामेंट, राइट. तो जो एरिया है सौराष्ट्र की, जो कि वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में आती है, सूस्टा, सॉरी नॉट सौराष्ट्र, इट इज सूस्टा, राइट. सो दे कैन बी नोटेड इन द न्यू मैप. तो जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में थी बिहार के, उसको सूस्टा को अब दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द नेपाल न्यू मैप. तो उसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है और बात की गई है इस एडिटोरियल में कि किस तरह से चीज़ों को रीसेट किया जा सकता है, एक नया रोड मैप कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है. तो इंडिया ने इस चीज़ को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया था. इंडिया ने कहा था कि ये जो आई है एक आर्टिफिशियल इंगेजमेंट होगी टेरिटरीज़ को लेकर के, कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि नेपाल ने ऐसा क्यों किया है, राइट. एंड इंडिया आर्ग्यूड कि जो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल है दे हैव रिफ्रेन फ्रॉम द अनजस्टिफिकेशन कैटेगोराफिक असर्शन, राइट. तो इंडिया की जो अपनी सोवरनिटी है और जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको बरकरार रखते हुए इंडिया शांतिपूर्वक बात करेगा और जो नेपाल की जो बेसिकली जो स्टैंड है उसको समझने की कोशिश करेगा, राइट. सो कंट्री व्हेन यू हैव अ इमीडिएट नेबर एंड व्हेन यू हैव अ वेरी गुड नेबर, जहाँ से आप जिसको एज अ गार्जियन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप बात करें बेसिकली इंडिया इज़ लाइक अ मेंटोर टू नेपाल, ऑल्दो नेपाल हैज़ इट्स ओन सॉवरनिटी एंड इट्स ओन कल्चर. तो कहीं ना कहीं जब दायित्व आती है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो इंडिया हैज़ टू टेक द पीस नोट कि सारी चीज़ें पीस प्रोसेस के साथ काम करे, ना कि किसी तरह से कोई भी वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो उस एरिया में लेकर के, राइट.
और अर्लियर नेपाल हैज़ प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि जो न्यू मैप यहाँ पे बनाई गई थी काला पानी को, वो इंडियन टेरिटरी में दिखाया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और नेपाल के साथ अगर हमारी रिलेशनशिप खराब होती है तो कहीं ना कहीं जो चाइना फैक्टर है वो इंटर करता है, क्योंकि चाइना इस कोशिश में है कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो वैक्यूम क्रिएट होती है वो चाइना फिल कर पाए, राइट। तो इंडिया हैज़ ऑल्सो आस्क्ड नेपाल टू रिटर्न इनटू द डायलॉग में काम कीजिए। आपको पता है नेपाल इज़ अ बेसिकली लैंडलॉक कंट्री, राइट। उसकी जितनी भी एग्जिट पॉइंट है, जो मेन एग्जिट पॉइंट इधर तो हिमालयज़ है, यहाँ से तो ब्लॉक है, तो सारी जो एग्जिट पॉइंट है वो इंडिया के थ्रू ही है। तो नेपाल की ये मजबूरी भी है, तो इसके इस मजबूरी को हमें फ़ायदे के तौर पे नहीं देखना चाहिए, बट कि एक नेगोशिएशन पे देखना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर डायलॉग इस्टेब्लिश हो और दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक सही वार्तालाप हो, एक शांति स्टैब्लिश की सके। द पीस प्रोसेस शुड बी स्टैब्लिश्ड। क्या क्या कॉजेज़ हैं डिस्प्यूट के? तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि जो ओरिजिन ऑफ काली रिवर है उसको लेकर के डिस्प्यूट है कि वो एक्चुअल में कहाँ से है, जो लिम्पी धुरवा है वहाँ पे है या लीपू लेक जो है उस वाले रीजन पे, बट इसको लेकर के भी कंट्रोवर्सी बरकरार है। तो जो कालापाली रीजन है दैट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द रिवर काली, और नेपाल claims that the region is based on the river as it's become the marker of the boundary and the kingdom of the Nepal through the Treaty of Sogoli। तो जो सगौली की जो एग्रीमेंट थी, ट्रीटी थी, उससे नेपाल का कहना है कि हमने इसको देखते हुए जो कालापाली का जो रीजन है, रिवर काली के जो आसपास के रीजन है, वो हमारे अंदर आती है। तो ट्रीटी ऑफ सोगौली के बारे में मैं आपको बता दूं, मार्च 4 1816 में ये ट्रीटी की गई थी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द गोरखा चीफ नेपाल के जो थे, और एंग्लो इंडियन नेपालीज वॉर जो है वो उसको ख़त्म किया गया था इस ट्रीटी के थ्रू। और बाय दिस ट्रीटी नेपाल री अनाउंस टू क्लेम द डिस्प्यूट द तराई रीजन, जो लो लैंड एरियाज है नेपाल के, जो तराई रीजन है उसमें किसी भी तरह की कोई कॉन्स्क्रिप्ट हो वेस्ट काली रिवर को, उसको एक्सटेंड की थी सतलज रिवर के तब। तो कहीं ना कहीं एक उस टाइम पे भी ये पीस प्रोसेस थी, राइट। ट्रीटी ऑफ सगोली के बारे में आप पढ़ लें, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं? इंडिया शुड नेगोशिएट डिप्लोमेटिकली, ज़रूरी है कि भाई एक डिप्लोमेटिक स्तर पे बात हो, प्रॉपर पीस प्रोसेस स्टैब्लिश की जाए। जो बाउंड्री डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, उसको इंटरनेशनल लॉ जो ट्रांस बाउंड्रीज लॉ है उसके हिसाब से देखा जाए, ट्रांस बाउंड्री वाटर डिस्प्यूट के लॉज के हिसाब से। एंड इंडिया नीड टू स्टेप इनटू द राइट डायरेक्शन टू सॉल्व द बॉर्डर इश्यूज बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन गेट अमेंडमेंट। जब संविधान की वहाँ पे अमेंडमेंट की गई है तो उसको कुछ किसी कंटेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है, ना कि उसको अब्रप्टली आप इंटरप्रेट करो, राइट। एंड इंडिया शुड इंगेज इन द मोर प्रोएक्टिव विद इन द नेपाल इन टर्म्स ऑफ पीपल टू पीपल इंगेजमेंट। जो पीपल टू पीपल इंगेजमेंट है इंडिया और नेपाल की, उसको इस्टेब्लिश करना, वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करना एक बहुत बड़ी बात होगी दोनों देशों के सरकार के लिए। एंड ब्यूरोक्रेटिक अरेंजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द political interactions, right? So this would be the way forward. And I would like to tell you that we have started our answer writing practice. Now you can log into the IAS ज्ञान वेबसाइट, जहाँ पे आपको हर सुबह क्वेश्चन मिल जाएगी और अपने आंसर आप हमें उसी IAS ज्ञान के वेबसाइट पे भी लिख करके भेज सकते हैं, राइट। एंड ईच आंसर्स वुड बी इवेल्युएटेड। एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने इसकी जानकारी दी हुई है, आप वहाँ पे वेब क्लिक करके एड्रेस से इस चीज़ पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। Now coming to the today's MCQs questions. So the first question is from economy. Consider the following statement with regards to tax havens. Tax havens are the country that have low or near zero taxes, and they do not share any financial information with the tax authority. तो क्या है टैक्स हेवन को लेकर के? आपने न्यूज़पेपर में काफ़ी पढ़ा होगा, तो आप इसके बारे में मुझे बताएं। इसके करेक्ट ऑप्शंस A, P, C या फिर D। तो वीडियो में हमें कमेंट सेक्शन करके आंसर ज़रूर बताएं। Now the second question is from the polity. The governor is elected by the special constituted electoral college, and the office of governor in the state is not employment under the central government. So these are two important questions from the लक्ष्मीकांत point of view. आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा पॉलिटीज़ में, तो ये चीज़ें वहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन A, B, C and D, right? So whatever you feel is the correct answer, you can let us know your answer in the comments down below, right? और अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं। विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बीइंग आई एम साइनिंग ऑफ। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।